talk about the power of God's word. Why the Bible is powerful, how is it powerful, and how does it work? So that is going to be our focus for this evening. We are handful of people, but I think others would join maybe in some time. Uh, let's see. Anyway, let me start with a word of prayer. Gracious Father, we want to thank you for this evening again, and Lord, as we see how your word works. It's a powerful word, it's a wonderful word, and it works wonders in our lives. And we want to see that through the Bible, how does it work and how we can make it happen in our lives. It's working. Thank you so much, Father. We are so grateful of you. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So I have been having a little problem with my camera. So I have to switch to some different camera and it's not that clear. I can see that. Anyway, so let's start with the power of God's word. All right, everyone, uh, you can comment, you can type in the chat box the power of God's word or power of God's word. So, what does the word of God do? Power of God's word. So, this is what we are going to look into power of God's word or power of the word of God. All right, thanks. Yeah, so the power of God's word. When we think of God's word, we always have this idea that the word of God is powerful. हमने ये बहुत बारी सुना है कि परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थी है, वो कार्य करता है, लेकिन हमने कभी भी ये जाना नहीं है खुद से कि किस तरह से वो पावरफुल है या वो किस तरह का कार्य कर सकता है। तो आज वही हम देखेंगे, वही हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम परमेश्वर के वचन में से देख सकें कि परमेश्वर का वचन कार्य किस तरह से करता है। आजकल चर्चेज में भी एक मूवमेंट चलती है कि पावर को महसूस करना है, अनुभव करना, बट वो किस तरह से पावरफुल है, किस तरह से वो कार्य करता है, वो किसी को पता ही नहीं है। इस वजह से ही लोग बाइबल पढ़ते भी नहीं है। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम उस वचन की सामर्थ्य को देखें, किस तरह से कार्य करता है और किन चीजों में कार्य करता है और क्या है कि जो चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। एक सिंपल सा रीजन, ये जो वर्स लिखी है, ये वर्स पॉल लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तुमने अपने उद्धार का वचन सुना, when you heard the word of salvation, you received it and it's still working in your lives, और तुमने उसको अपनाया और वो तुम्हारे जीवनों में अभी भी कार्य कर रहा है। so that word is still working. वो एक सामर्थी वचन है और वो हमारे जीवनों में कार्य भी करता है। so how does it work and in what areas does it work? इन चीजों को हम देखेंगे। See, one of the reasons that the Bible is so powerful or the word of God is so powerful is because God is powerful. And पिछले हमने जो सेशन था उसमें हमने देखा that this word has a purpose and it transforms us. And with that same purpose, we are going to see how does it transform and in what areas does it transform. किन क्षेत्रों में हमें परिवर्तित करता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। Okay, so we are going to read this verse. This is very important verse, and this is from Isaiah, the prophet Isaiah, chapter 55, verse 10 and 11. The line that is I have written is, the word of the Bible have life-changing power. कि हमारे जीवन को परिवर्तित करने की इसमें सामर्थ्य है, परंतु वो कैसे है? That is what we are going to look into. So verse है, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it. जैसे बारिश और बर्फ स्वर्ग से गिरती है और वो वापस नहीं जाती बिना वो पानी दिए पृथ्वी को। और जब वो पानी देती है बारिश या बर्फ, तो क्या होता है? जितने भी बड्स हैं फ्लरिश करते हैं, फूल निकलते हैं, और जो बीज हैं वो उगते हैं और खाने वाला खाना खाता है। उसी तरह से परमेश्वर कह रहे हैं, मेरा वचन भी है जो मेरे मुख से निकलता है और वो कभी भी खाली लौटता नहीं है, लेकिन वो अपने उद्देश्य को पूरा करता है। इट विल accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent. कि
जो मैं चाहता हूँ उस चीज को पूरा करता है, और साथ ही साथ उस चीज को अचीव करता है, उस उद्देश्य को भी पूर्ण करता है जिसके लिए वो चुना गया है। सो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर इस वचन में एक एनालॉजी ली है। एनालॉजी ली है कि कैसे स्वर्ग से बारिश आती है, मतलब पानी आता है, और वो पानी क्या कर रहा है। पानी, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी, मैं जिसे हम कहें अगर हॉर्टिकल्चरल टर्म में, तो जैसे कि पेड़ पौधे हैं, सीड्स हैं, वो ग्रो करते हैं क्योंकि उनको पानी मिलता है, उनको मॉइस्चर मिलता है। बिना मॉइस्चर के दे आर डेड, दे आर एज गुड एज डेड। और वो तब तक वापस नहीं जाते, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, वो साइकिल को वो पूरा तब तक नहीं करते जब तक वो अपना पर्पस ना पूरा कर ले। उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी जब बोला गया है, वो खाली नहीं लौटता। और यहाँ पर हमारे जीवनों में भी परमेश्वर का जब वचन बोला जाता है, जब हम उसे पढ़ते हैं, वो अपना उद्देश्य को पूरा करता है, वो अपने कार्य को पूरा करता है हमारे जीवनों में। ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि कैसे परमेश्वर के वचन में ये सामर्थ है कि वो लाइफ चेंजिंग है। हाउ इज इट दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइफ चेंजिंग? क्यों? क्योंकि वो अपने पर्पस को पूरा करता है, बिकॉज गॉड इज unchanging God, and He's a life changing God. And that's what God's word is doing. You can see that जो analogy ली जा रही है, वो analogy ली जा रही है पानी की, कैसे पानी जरूरतें पूरी कर रहा है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन जब उनके मुख से निकला है, जो बाइबल है, वो अपने कार्य को पूरा करेगी। ये उसी तरह से है, हम इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं कि जब हम किसी को गॉस्पल बताते हैं, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, हो सकता है कि उस समय में वो ना विश्वास करे जन, लेकिन कभी कभार हमें गवाही सुनने को मिलती है कि बहुत सालों के बाद उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, और उसने अपना जीवन दिया, क्योंकि वो जो बीज बोया गया है वचन का, वो एक दिन बढ़ेगा भी। उसी तरह से जिस तरह से बाकी जो बीज हैं, जो फूल हैं, वो सब बढ़ते हैं जब बारिश आती है। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट द वर्ड ऑफ द बाइबल हैज, इट हैज अ लाइफ चेंजिंग पावर। ऑलराइट, नेक्स्ट वी आर गोना लुक एट, पहली चीज जो पावर दिखाता है बाइबल, वो पहली चीज इस तरह से पावर दिखाता है, इट कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स द अनबिलीवर, कि एक अविश्वासी के जीवन को वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। मतलब वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं रखता, उस व्यक्ति के जीवन को कन्वर्ट करता है। कैसे? सिर्फ बाइबल पढ़ने के द्वारा बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने सिर्फ बाइबल को पढ़ा और उन्होंने अपना जीवन दे दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 15 आयत में, उसमें ऐसा लिखा है कि तिमुथियुस को पौलुस लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि तूने बचपन से ही पवित्र शास्त्र को जाना है, और उसने तुझे इतनी बुद्धि भी दी है ताकि तू अपनी सैल्वेशन को प्राप्त करे, जो कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा है। सी, अगर वचन को अच्छे से पढ़ा जाता है तो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है। मैं अक्सर बात करता हूँ, जो हम मेरे बॉस हैं, वो एक सिख फैमिली में से कन्वर्ट हुए। उन्होंने सिर्फ वचन को पढ़ के प्रभु यीशु मसीह को जाना। उन्होंने वचन को पढ़ के ही जाना कि कैसे वो उद्धार प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और सिर्फ बाइबल को पढ़ के, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम जब वचन को अच्छे से पढ़ते हो, तुम्हें पता चलता है कि मेरा उद्धार कैसे होने वाला है, मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को जान सकता हूँ। सो ये कन्वर्ट करता है एक अनबिलीवर को। दूसरा वचन जो है वो है रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। इसमें लिखा है कि गॉस्पल जो है, सुसमाचार जो है, या जो वचन है, वो सैल्वेशन की पावर रखता है उन सब लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। मतलब जब भी सुसमाचार बोला जाता है तो उसमें एक पावर है, उसमें एक शक्ति है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं, सामर्थ पाने के लिए। क्योंकि पॉलुस कहते हैं रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 में कि आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल। नॉट अशेम्ड, नॉट अशेम्ड, दिस शुड बी आवर क्राई ऑफ आवर हार्ट, कि वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल, कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता या सुसमाचार से नहीं लजाती। राइट इन द चैट बॉक्स, नॉट अशेम्ड, नॉट अशेम्ड, वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल। पॉलुस का यही एक पॉलुस का यही एक वो था कि वो सुसमाचार से नहीं लजाते थे।
He was never ashamed of what he believed in and what he wanted to share with other people. क्योंकि उनको पता था यही है जिसमें पावर है सैल्वेशन की। सो इसीलिए वचन क्या करता है, एक अविश्वासी को विश्वासी में कन्वर्ट कर देता है। सो इफ यू आर समवन हु डजंट नो जीसस, टुडेज वर्ड इज फॉर यू। आज का वचन आपके लिए है, बिकॉज इट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म पीपल। It has the power to transform people. Just by reading the Bible, people come to know Jesus. Just by listening to the gospel, people come to know Jesus. All right, that's the first thing. Let's go further. Second thing is it combats sin. मतलब वो पाप से भी लड़ाई करता है। वचन पाप से लड़ाई करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 119 उसके 9 से 11 में, साम्स, द बुक ऑफ साम चैप्टर 119 वर्सेस 9 थ्रू 11, उसमें लिखा है कि जब हम ओबे करते हैं बाइबल को और जब हम जानते हैं, फिर क्या होता है कि जो सत्य के प्रकाश में, जो ट्रुथ है, उसमें होकर के जब हम अपने पाप को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पाप कितना भयानक है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हमारी लाइफ में। दिस इज व्हाट द बाइबल टीचेस अस कि व्हेन वी नो द वर्ड, जब हमें बाइबल का पता है कि बाइबल किस बारे में है, एंड व्हेन वी ओबे द बाइबल, we get to see what sin is, how dangerous it can be, and what could be the consequences when we sin. And it says like this: how can a young man stay pure? By obeying your word. So first thing we saw, it converts an unbeliever. Second is it combats sin, कि वो पाप से भी हमें मदद करता है लड़ाई करने में। कैसे? जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, when we obey the word of God। यहाँ पर लिखा है हाउ कैन a young man person stay pure, कि एक जवान कैसे एक पवित्र जीवन जिए, by obeying the word of God। It says, I have tried hard to find you, don't let me wander from your commands। Verse 11 says, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you। When we obey the word, when we keep it in our heart, it means that when we memorize it, when we have internalized the word of God, we will not sin against God। That's the second thing the word of God does, and this is very beautiful. You know why? Because that has been the challenge for so many young people। बहुत सारी जवान लोगों का यही एक चैलेंज रहता है, उनको चुनौती मिलती है रोजाना जीवन में कि कैसे एक पवित्र जीवन जिया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल को पढ़ने के द्वारा और उसकी आज्ञाकारिता में चलने के द्वारा होगा। वो हमारे खुद से नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल को मानने के द्वारा होगा। इसीलिए जरूरी है कि हम बाइबल को जानें, बाइबल को जानें। सी, हमारी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि जब हम बाइबल को पढ़ना छोड़ देते हैं। सी, माय पर्सनल लाइफ हैज बीन लाइक दिस। व्हेनेवर आई हैव स्टॉप्ड स्टडिंग द बाइबल, रीडिंग द बाइबल, आई हैव स्ट्रगल्ड विद सिन। एंड दिस इज नेचुरल फॉर एवरीवन। यू विल स्टार्ट लाइंग, आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे, आपके मन में गलत ख्याल आएंगे, you know you would start deceiving people। That's what happens when we stop studying the Bible or reading the Bible। ये सब चीजें होती हैं, but जरूरी है, what is necessary is that the word of God helps us to fight sin। पाप से लड़ने के लिए हमें सहायता करता है, लेकिन कैसे करता है? जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं और वचन को जानते हैं। वचन को अपने हृदय में रख छोड़ने का मतलब है कि छोड़ के हम भाग नहीं गए कहीं, नहीं नहीं नहीं, हम उसको जानते हैं। वी नो इट एक्सपीरियंशियली एंड इंटेलेक्चुअली। हमें इंटेलेक्चुअली भी पता है और अपने एक्सपीरियंस से भी पता है वचन का। ओके, दिस इज द सेकंड थिंग। सो फर्स्ट थिंग वाज कि बाइबल क्या करता है, वचन क्या करता है कि वो कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स पीपल, कन्वर्ट्स जो परमेश्वर को नहीं जानते। सेकंड इज कि वो पाप से लड़ने में सहायता करता है। एंड थर्ड थिंग, जो पावर हमें परमेश्वर के वचन की देखने को मिलती है, वो बहुत ब्यूटीफुल है कि वो हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी करता है। दिस इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, ये बहुत ही अच्छी वर्स है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि एक नवजात बच्चे के समान, एक नवजात शिशु के समान आत्मिक, शुद्ध आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि क्या हो सके कि तुम अपने उद्धार के अनुभव में और बढ़ते चले जाओ। और तुम ऐसी ही लालसा करो, किस चीज की? इस तरह के नरिशमेंट की। क्राई आउट फॉर दिस नरिशमेंट, कि तुम्हें ऐसा ही जो भोजन है, आत्मिक भोजन मिले। लेकिन किस तरह से क्या है?
यहाँ पर तीन चीजें हैं। पहला एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए जैसे हम नए जन्मे बच्चे, हम नए जन्मे बच्चे को क्या होता है, सिर्फ एक चीज है, उसने उठना है, सिर्फ दूध पीने के लिए और फिर सो जाना है। उठना है, दूध पीना है और फिर सो जाना है। सिर्फ उसे दूध चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने इस चीज को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया जब मेरी सिस्टर के बेबी हुआ था। इस चीज को मैं बहुत क्लोजली देख पाया और समझ पाया कि क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जैसे नवजात, न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं, अभी नए नए पैदा हुए बच्चों की तरह लालसा करो आत्मिक दूध की। एवरीवन राइट स्पिरिचुअल मिल्क इन द चैट बॉक्स, स्पिरिचुअल मिल्क, स्पिरिचुअल मिल्क, because this is the spiritual milk. The Bible is our spiritual milk, and इसका जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, the experience the Bible gives us is amazing. See, हम देखते हैं कि दूध की तरह, सो पहले हमारा जो व्यवहार, एटीट्यूड होना चाहिए, वो होना चाहिए एक नए जब नवजात शिशु की तरह। और फिर दूसरी एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख। हमें लालसा किसी की करनी है, दूध की लालसा करनी है, दूध की लालसा। और हमारा एम क्या होना चाहिए, ताकि हम अपने उद्धार में बढ़े, अपनी सैल्वेशन में बढ़े। सी, सैल्वेशन में बढ़ने का मतलब यह है कि हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। और वो कैसे होता है, जब हम आत्मिक दूध को पिएंगे। अब आत्मिक दूध क्या है यहाँ पर? बाइबल, परमेश्वर का वचन। सी, बहुत सारे मसीही लोग आज की तारीख में ये कहते हैं कि हम आत्मिक रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछोगे बाइबल में क्या पढ़ रहे हो, उनके पास कुछ कहने को नहीं होता। उनसे पूछो आपने बाइबल कितनी बारी पढ़ी है, उनके पास कुछ बताने को नहीं है। सी, वचन को पढ़े बिना हम आत्मिक रूप से बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए पहली चीज है हमारा एटीट्यूड एक नवजात शिशु की तरह होना चाहिए, जस्ट लाइक अ बेबी। अ बेबी इज सो इनोसेंट दैट अ बेबी craves for nothing else but milk. That's the third thing that we learn from the power of God's word, कि परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ है, वो तीसरी चीज ये करती है हमारे जीवन में। सो पहली चीज हमने देखी कि परमेश्वर का वचन एक अविश्वासी को विश्वासी बना सकता है। सिर्फ बाइबल पढ़ने के द्वारा लोग परमेश्वर को जान सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ बाइबल पढ़ी और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। दूसरी चीज, वो हमें पाप से लड़ाई करने में मदद करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे और उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे, तभी हम पाप से लड़ सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे मसीही लोग पाप की गुलामी में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वचन पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि लिखा क्या है, तो आज्ञाकारिता में कैसे चलेंगे। और तीसरी चीज, आत्मिक बढ़ोतरी होती है हमारी जब हम वचन को जानते हैं। और इस तरह से बाइबल, द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड इज सीन इन आवर लाइफ। ऑलराइट, काफी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बट एनीवे दैट्स फाइन। But glad you guys could join. We are about to wrap up actually, but I'm gonna do a recapitulation so that you guys know कि आज बात क्या, किस बात की है। Okay. Fourth thing is कि हमारे motives को बताता है, clearly reveals our true motives. Hebrews chapter 4 verse 12 कि clearly बताता है कि हमारे motives क्या है। motives का मतलब ये है कि हमारे जो मंतव्य है, कि हमारा मंतव्य कैसा है, हम किस चीज का हमने मंतव्य रखा हुआ है हमारा। हमारी, जिसे हम कहें कि किसी चीज को लेकर के हमारी मोटिवेशन कैसी है, वो भी हमें ये क्लियरली बताता है परमेश्वर का वचन बाइबल। इब्रानियों 4:12, ये मेरी फेवरेट वर्स है। इसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थी है। ठीक है, सामर्थी, पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थी है। और ऐसा भी लिखा है कि दो धारी तलवार से भी तीखा है, ये तेज है, दो धारी तलवार से तीखा और तेज वचन है। और ये क्या करता है कि आत्मा और प्राण के को बीच में से काटता है, ठीक है, जॉइंट एंड मैरो तक जाता है, और हमारे अंदर के विचारों को और डिजायर्स को बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। सी, दैट्स व्हाट द बाइबल डज। ये इस तरह से पावरफुल है। इसलिए कई लोग बाइबल क्यों पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको उनकी पिक्चर दिख जानी है कि इसमें लिखा क्या गया है, इसमें मेरा पाप दिख जाना है, मेरे डिजायर्स दिख जाने हैं। दैट्स व्हाट द बाइबल डज। एंड
यहाँ पर बहुत अच्छी एनालॉजी यूज की है एक दो धारी तलवार की। दो धारी तलवार ये होती है जिसके दोनों तरफ से काटा जा सकता है। हमने कुछ मूवीज में भी देखा होगा पुरानी, जिसमें राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ाई करते थे, और वो आगे से पॉइंटेड होती है और वो किसी को भी काट सकती है और बड़ी आसानी से काट देती है। उसी तरह से बाइबल जो है हमें अंदर तक चीरती हुई जाती है जब हम इसे पढ़ते हैं, और हमारे जो भी थॉट्स हैं, हमारी जो सोचनी है और जो हमारी लालसाएं हैं, उनको वो जज करती है, वो बताती है कि ये चीजें गलत हैं, ये सही हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, इट क्लियरली रिवील्स आवर ट्रू मोटिव्स। हमारे सही मोटिव्स क्या है, हमारी मोटिवेशन क्या है किसी भी चीज को करने के लिए, बाइबल उसे रिवील करती है। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, चैट बॉक्स में आप लिखिए ट्रू मोटिव्स, ट्रू मोटिव्स। Soul and spirit, okay, yeah, sure, I'll stress on this. Okay, Rahul is asking कि soul और spirit में क्या फर्क होता है। Yeah, please write true motive and I'll explain this right now कि soul और spirit में क्या फर्क होता है। All right, okay, जब हम क्रिश्चियन यू नो अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जब हम बात करते हैं क्रिश्चियन अनाटमी की, के ह्यूमन बॉडी की, तो तीन चीजों से यूजुअली बताया जाता है कि ह्यूमन बॉडी बनी है: सोल, स्पिरिट एंड बॉडी। स्पिरिट की जब हम बात करते हैं तो स्पिरिट इज लिटरली एन अनसीन पर्सन। स्पिरिट एक अनसीन पर्सन है और इनविजिबल पर्सन जिसे हम देख नहीं सकते हैं। सोल हमारे क्या कहते हैं, डिजायर्स और हमारे थिंकिंग कैपेसिटी को दर्शाया जाता है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। क्योंकि सोल के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है सुके। सुके जहां से हमारा वर्ड आता है साइकोलॉजी, साइक, तो वो वर्ड है जो हमारे इस चीज को दर्शाता है, हमारे पूरे के पूरे यू नो थिंकिंग कैपेसिटी को। और इस तरह से बाइबल इंटरप्रेट करती है, क्योंकि कई जगह पर बाइबल में लिखा है सोल स्पिरिट और स्पिरिट सोल एंड बॉडी। सो कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम ये दोनों सेम ही चीजें हैं, लेकिन कई कहते हैं नहीं, ये अलग है। बट बाइबल में इन चीजों को सेपरेटली बताया जाता है। कई कहते हैं नहीं, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स बेसिकली। तो सोल हमारे मेंटल मेकअप को दर्शाती है, मेंटल एंड इमोशनल मेकअप को दर्शाती है। और स्पिरिट हमारी जो है वो हमारी नॉन मटीरियल है, इट इज अ नॉन मटीरियलिस्टिक पर्सन। सो कोई हमारे से पूछे क्या हम सिर्फ स्पिरिट है या बॉडी है, सी क्रिश्चियन थियोलॉजी बाइबल के अकॉर्डिंग हम एक कंप्लीट पर्सन तभी बनते हैं जब हमारी बॉडी, हमारी स्पिरिट, हमारी सोल सब मिल जाए। इट्स नॉट कि हम सिर्फ आत्मा हमारी स्वर्ग जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। हमारा शरीर पूरा का पूरा स्वर्ग जाएगा जब रेजरेक्शन या पुनरुत्थान होगा। That is what we will experience. This is some other study, I mean, but let me just, I would just wanted to highlight these things. So this is what will happen. I hope it clarifies. All right, so this is the fourth purpose. So let me just recap everything, and I want to just close by recapping everything. All right, so पहले हमने सबसे पहले एक वर्स पढ़ी थी अजाया, उसका 55 का 10 से 11। Could you explain a fire of Holy Spirit baptism? Okay, I can explain. For such questions, please अगर आप मेरे Instagram पे join करें, मैं उस पे I answer such questions. अभी थोड़ा सा time कम होगा because it's a very broad topic to cover of fire of Holy Spirit baptism. ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बट आई कैन कवर दिस लाइक इफ यू कम जॉइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव होता हूँ सैटरडे शाम को 7 बजे। सो वहां पर मैं कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सो पीपल आस्क मी एंड आई लव टू आंसर देम, बट आई टॉक अबाउट इट, थोड़ा सा मैं बात कर दूंगा। और वर्ड ऑफ गॉड लाइफ चेंजिंग है। कैसे कि परमेश्वर का वचन कभी भी अपना, जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला है वो कभी भी अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं आता, वो हमेशा अपना काम पूरा अचीव करता है, अपने उद्देश्य को पूरा कर कर ही वापस आता है। ऑलराइट, सेकंड चीज जो हमने देखी है वो है कि वो अनबिलीवर को कन्वर्ट करता है, क्योंकि लोग सिर्फ बाइबल पढ़ने के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं। एंड नेक्स्ट है कि सुसमाचार जो है वो भी सामर्थ्य रखता है परमेश्वर की उद्धार के लिए, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं। एंड देन हमने देखा है कि वो पाप से लड़ने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू कॉम्बैट सिन, पाप से लड़ने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उसको ओबे करते हैं, दैट इज द टाइम कि हम पाप से लड़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज
कि वो हमें आत्मिक बढ़ोतरी में भी सहायता करता है। इट हेल्प्स अस इन स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारे सैल्वेशन एक्सपीरियंस को और रिच बनाता है जब हम वचन को पढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाट द बाइबल डज, यू नो, व्हेन वी रीड द बाइबल, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी होनी है जब हम वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल कह रही है कि वचन को अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। वचन के बिना देयर इज नो स्पिरिचुअल ग्रोथ। और शैतान, ओके, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा। शैतान ने सबसे बड़ा धोखा मसीही लोगों को पता है कैसे दे रहा है? वो लोगों को ये कह रहा है कि सिर्फ केवल और केवल प्रार्थना और आराधना करके आप आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि तुम बाइबल पढ़ो तभी आत्मिक बढ़ोतरी होगी। शैतान ने भरमाया हुआ है लोगों को कि वो वचन से दूर लेकर जा रहा है लोगों को। वो उसने लोगों के अंदर ये चीज डाल दी है कि वचन के बिना भी आत्मिक बढ़ोतरी हो सकती है। ऑलराइट, लास्ट चीज है कि वो हमारे मोटिव्स को दर्शाता है कि कौन इंसान कैसा है, क्या चाहता है। वो हमारे अंदर के सारे मोटिव्स को क्लैरिफाई कर देता है। ऑलराइट, सो होमवर्क ये है, मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था कि दूसरा तिमोथियस उसका क्या पढ़ना था, 16 और 17 याद किया? प्लीज यू गाइस कैन से यस और नो, आई मीन इन द चैट बॉक्स। अगर किया सो से यस, अगर नहीं किया सो से नो, दैट्स फाइन। ऑलराइट, मनजोत ने किया है, थैंक यू। ऑलराइट, एनी अदर पर्सन, किसी ने याद किया उसको? इट्स अ वेरी इजी वर्स, बहुत आसानी से याद हो जाती है। मैंने लगभग आज से 14 साल पहले उसे याद किया था उस आयत को, और वो अभी तक मुझे याद है। और किसी ने याद नहीं किया? ऑलराइट, दैट्स फाइन, बट it's fine in some sense, but it's not really fine because मुझे लगता है you should you know do it, you should memorize। अगर आप चाहते हैं शैतान से लड़ाई करना, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन एकदम बदल जाए, then you need to saturate your mind with the word of God। आपको अपना जो मस्तिष्क है उसको परमेश्वर के वचन से भरने की जरूरत है। and that will only happen if you memorize the scripture। अगर आप परमेश्वर के वचन को याद करेंगे। ऑलराइट, सो होमवर्क आपके लिए ये है कि आप परमेश्वर के वचन को रोजाना अपने जीवन में किस तरह से कार्य करते देखते हैं। परमेश्वर के वचन को रोजाना अपने जीवन में किस तरह से कार्य करते देखते हैं, बिकॉज मैंने आपको जो 4 बातें बताई, उन 4 के अलावा आप और किस तरह से देखते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? इट्स समथिंग यू नीड टू थिंक अबाउट। और होगा, अच्छा होगा कि आप मुझे एक मैसेज लिखकर भेजें व्हाट्सएप पर, सो ताकि आपको, मुझे भी पता चले आपने किस तरह से देखा है परमेश्वर का वचन को कार्य होते हुए। बाइबल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि जो आपने बाइबल पढ़ी है उसमें से आपको कैसे पता है कि इस तरह से परमेश्वर का वचन कार्य करता है। प्लीज प्लीज डू थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस, ठीक है? ये मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। मैं आपके पास कोई ऑफिशियली कॉलेज टीचर नहीं हूँ या स्कूल टीचर नहीं हूँ, बट एक मसीही भाई होने के नाते मेरी ये इच्छा है, मेरी ये लालसा है कि आप बढ़ें प्रभु में। और प्रभु में बढ़ने का एक ही तरीका है, और वो है उसके वचन को पढ़ना और उसको मानना। उसके साथ जब आप प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। दैट्स व्हाट इट इज, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। ऑल राइट, so that's all for today. So this is for your homework, so you guys need to do it। and let me just touch on the topic of Holy Spirit baptism। सी, ये एक ऐसा टॉपिक है कि लोगों के बहुत सारी बातें होती है कहने को। कई कहते हैं कि लोग टंग्स में बोलते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं, कई कहते हैं नहीं, टंग्स में बोलना जरूरी नहीं है। सी, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, हमें वो देखना जरूरी है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं पहला कुरिन्थियों, उसका 12 अध्याय और उसकी 13 आयत। पहला कुरिन्थियों उसकी 12 अध्याय, चैप्टर 12 वर्स 13। आप इसको पढ़ना एक बारी, और इसको देखना कि वो कहना क्या चाहते हैं पौलुस, क्योंकि स्पिरिट बैप्टिज्म के बारे में एक जगह इधर बात हुई है और दूसरी जगह गॉस्पल्स में बात हुई है, सुसमाचार में, जब प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि मेरे बाद जो आएगा वह तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका मतलब क्या, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। मे बी जब मैं अपने इंस्टाग्राम लाइव सेशन में जाऊंगा फ्राइडे सैटरडे शाम को 7 बजे, सो आप मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उधर जरूर इस चीज का आंसर दूंगा। ये मेरा पहला प्रश्न होगा जिसका मैं आंसर दूंगा। That's all for today, guys। We still have 5 minutes। If you have any questions related to what we studied, जो हमने पढ़ा है उसके related आपके पास कोई question है, so feel free to write in the chat box।
आई एम ऑल्सो वर्किंग टू सेटअप द कोर्स ऑनलाइन। मैं इस चीज पर भी कार्य कर रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन कोर्स को डाल दूं, ताकि किसी को फिर टाइम की प्रॉब्लम ना हो कि 8 बजे मिलना ही मिलना है। सो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्लीज प्रेयर कीजिए। मैं इस चीज पर वर्क कर रहा हूँ, ताकि जब आपको टाइम लगता है आप ऑनलाइन जाकर कोर्स कर सकते हैं। और दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। और मैं ऑफिशियली बाइबल की बात को नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाइबल की बात का। एंड प्लीज कीप प्रेइंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ करने को होता है और मुझे हर एक चीज के लिए टाइम कैसे मैनेज करना, मेरा ये चैलेंज है। प्रभु मुझे बुद्धि बख्शे कि मैं किस तरह से इसको कर सकूं, क्योंकि ये मेरा विजन है। ये इस दर्शन को मैं लेकर चलता हूँ कि प्रभु की कलीसिया, परमेश्वर की जो चर्च है, वो वचन को जानने वाली हो जाए, वो परमेश्वर के वचन को जानने वाली हो जाए और परमेश्वर के वचन को मानने वाली हो जाए। ये मेरा दर्शन है कि बाइबल की बात करनी, बाइबल के बारे में सिखाना, लोगों को बताना कि बाइबल में से ही हमें सब कुछ कैसे मिलता है। अगर आपने बाइबल की बात करनी है, लाइव चैट, हाँ जी हाँ जी, सैटरडे 7 इवनिंग लाइव चैट इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम पर आता हूँ। सो मेरा पिछले बारी फर्स्ट सेशन था। सो दिस इज माय विजन। अगर आप इस विजन में जुड़ते हैं, सो इट वुड बी ग्रेट कि परमेश्वर के वचन को हम कैसे जानते हैं और दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो जो लोग बाइबल की बात में जुड़ते हैं वो दूसरों को सिखाने वाले हो जाएं, बाइबल सिखाने वाले हो जाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी फैमिली फॉर्म कर सकते हैं जिसमें लोग बाइबल के वचन को जानकर मानने वाले हैं और दूसरों को सिखाने वाले भी हैं। सो आर यू गाइस विद मी? से इफ यू आर विद मी, से यस यू आर विद मी। That would be a support. If you are with me, say yes. Say yes, you are with me. So it'll be a good support for me. Please write in the chat box if you are with me in Bible ki baat. Yes. Thank you. Thanks everyone. Thanks for showing support to Bible की बात। फिर मुझे भी एक encouragement मिलती है कि मैं और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करूं और अच्छे से वचन को पढूं और मैं सिखा सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर ऑल दैट यू हैव डन। आई ट्रीट यू एज माय फैमिली, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। और मेरा यही विजन है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो वचन को जानती है और दूसरों को वचन के बारे में बताती है। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने शुरुआत की थी, मैंने कभी इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक दिन मैंने खोल कर देखा तो इतने ज्यादा फॉलोअर्स हुए थे। फिर मुझे लगा कि खुदा मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं कि मैं इसको और आगे लेकर जाऊं, और आगे लेकर जाऊं। और फिर मैंने उसमें कंटेंट डालना शुरू कर दिया। मैंने वचन को पढ़ा, मैंने कुछ पोस्ट डाले हैं पवित्र आत्मा को लेकर के, आप उनको चेक कर सकते हैं सिस्टर योगिता। सो वो आपको शायद हेल्प करेंगे थोड़े से, लेकिन उस पे मैं अभी बहुत सारी बातें और भी कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। हम फ्राइडे को मिलेंगे एक बाइबल के नई टॉपिक पे। तो अभी हमने 3 चीजें देख ली हैं, बाइबल की बुक्स के बारे में, बाइबल का पर्पस और बाइबल की पावर। ठीक है, इसको मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल के आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। और मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मैं एक ग्रुप फॉर्म कर लूंगा व्हाट्सएप के ऑफिशियल नंबर पे जो बाइबल की बात का होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, सायोनारा, गुड नाइट, सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाइबल की बात देखते और करते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।